Hello students, hope you have visited the video 1 and 2 of periodic classification of element. This is the third and the final video. इस वीडियो को देखने से पहले बच्चों उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से उसको पहले वॉच करके फिर थर्ड वीडियो को देखना है, ठीक है। अच्छा, अब इस वीडियो में जो मुझे डिस्कस करना है वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो एनोमलीज थी वो कैसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रिमूव कर पाए हैं। First anomaly was the position of hydrogen. So position of hydrogen was explained in the modern periodic table how the hydrogen, lithium, sodium and potassium, if we write their electronic configuration, their outermost electronic configuration is same. For hydrogen 1 it is 2,1, for sodium it is 2,8,1, for potassium it is 2,8,8,1. Outermost electronic configuration of hydrogen is similar to alkali metal. So in the modern periodic table, hydrogen has been kept over the alkali metal. So जो problem थी position of hydrogen की in the Mendeleev periodic table की alkali metal के साथ ही क्यों रखा है, ये property इसमें अब solve होगी because outermost electronic configuration of hydrogen matches with alkali metal, so it is kept over the alkali metals. Second problem was of isotopes. Isotopes are the elements of the same, are the atoms of the same element having same atomic number but different mass number, having the same atomic number but different atomic masses या mass number. As the isotopes का atomic number is same, so उनको एक ही position मिलेगी because modern periodic table is based on atomic number, not on the atomic masses. उनके masses different होते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. So isotopes को एक ही position मिली in the modern periodic table. तो second anomaly of isotopes has been resolved. फिर थर्ड थी wrong order of atomic masses. कोबाल्ट एंड निकल का wrong order में masses थे, वो भी रिमूव हो गई because जो कोबाल्ट है उसका जो atomic number है 27 है and निकल का atomic number is 28. So कोबाल्ट पहले आएगा and निकल आएगा बाद में. भले ही उनके जो atomic masses हैं वो wrong order में होते रहे, but ये जो टेबल है वो बेस है एटॉमिक नंबर पर. सो इसमें जो जो एनोमलीज आई थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में वो सब बच्चों इसमें रिमूव हो गई हैं. अब हमें लोग को मेनली स्पेशली पढ़ना है ट्रेंड्स और ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे कैसे हैं ये अब मैं तुम लोग को के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बच्चों. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ट्रेंड्स इन द पीरियड्स. मैं पहले पढ़ा रही हूँ ट्रेंड्स इन द पीरियड्स. पीरियड्स होते क्या हैं, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, उनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज को हम बोलते हैं पीरियड्स. मैं कोई पीरियड ले लेती हूँ. फर्स्ट वाला सेकंड वाला पीरियड मैंने लिया है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 3, 4 एटॉमिक नंबर 5, 6 is carbon, 7 is nitrogen, 8 is oxygen, 9 is fluorine and 10 is neon. Write their electronic configuration. Their electronic configuration is 2,1, it is 2,2, it is 2,3, it is 2,4, it 2,5, 2,6, 2,7 and 2,8. The valence electrons in a period increases. Valence number of valence electron increases when we move left to right in a periodic table. If we are moving left to right from in a periodic table, the number of valence electrons will increase. ठीक है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब number of valence electrons is increasing and valency of lithium is 1, class 1. इसमें tendency है to lose 2, इसकी 3, इसकी 4, it can gain electron 3, 2, 1 and 0. So valency first increases and then decreases. ठीक है, तो first strand in the periodic table is for valence electrons and valency.
So on moving left to right in a periodic table, valence electrons will increases from 1 to 8 in a short period, and valency first increases from 1 to 4 and then decrease from 4 to 0. ठीक है, ये ट्रेंड बच्चों अच्छे से याद रखना है. एक और इसमें चीज ध्यान रखनी है, इन अ पीरियड एलिमेंट्स विल हैव द कॉन्जिक्यूटिव एटॉमिक नंबर, एक के बाद एक उनके एटॉमिक नंबर होते हैं. एक ही पीरियड के मेंबर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम, सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट है पीरियड में, और सबकी वैलेंसीज भी डिफरेंट होती हैं. ये तुम लोग को ध्यान रखना है. नेक्स्ट ट्रेंड इज ऑफ एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज विल डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल. कैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है? इफ मैं लिथियम का साथ देखूं, इसमें +3 is a positive charge on the nucleus and shells are 2 electrons and 1 here. If fluorine के केस में हम देखें तो 9 positive charges on the nucleus and shells are only 2 with the 9 electrons. Because in this case shell is not increasing, only the positive charges on the न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग एंड साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज होने का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है जितना कि पॉजिटिव चार्ज के इंक्रीज होने का पड़ रहा है. सो इसमें 9 पॉजिटिव प्रोटॉन्स आर अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, सो इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, सो एटॉमिक साइज विल डिक्रीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट. और इसमें 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं, नंबर ऑफ शेल्स विल सेम, सो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज होने का. चार्जेस इंक्रीज होने का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट मोर क्लोजर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, सो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल. सेकंड ट्रेंड इज दिस. इसमें एक और याद रखना है, एटॉमिक साइज को कैसे डिटरमिन करते हैं. न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक का जो साइज है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक साइज. एंड एटॉमिक साइज के लिए यूनिट हम यूज कर सकते हैं पिकोमीटर. 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर. हाइड्रोजन हैज अ स्मॉलेस्ट साइज और उसका साइज होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज इज 37 पिकोमीटर. दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, सो रिमेंबर इट बच्चों. नेक्स्ट इज मेटालिक कैरेक्टर. व्हाट आर मेटल्स? Metals are those elements which have tendency to lose electrons and get positive charge. तो मेटालिक कैरेक्टर बोले या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बोले, एक हम बोल सकते हैं. थर्ड इज द मेटालिक कैरेक्टर. फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, इट हैज मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या ज्यादा मेटालिक है. इसमें वैसे भी देखो साइज डिक्रीज हो रहा है एज वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट. Size is decreasing, so जो electrons हैं they are more closer towards the nucleus, so उनको lose करना मुश्किल है. So metallic character क्या होता है? It decreases as we move left to right in the periodic table of the short period. Metallic character will decrease as we are moving from left to right. Neon तो metallic है ही नहीं, ना non metallic है, बिकॉज ये इनर्ट है, इसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. मेटालिक कैरेक्टर भी बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, बिकॉज हम जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी इज इंक्रीजिंग एंड इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट. इसीलिए तुम देखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में सारे मेटल्स हैं और राइट साइड में सारे नॉन मेटल्स हैं. ठीक है, इसमें है लूज करने की टेंडेंसी, 4 में शेयर करने की टेंडेंसी होती है, 5 में गेन करने की. नॉन मेटालिक, ये नॉन मेटालिक, ये भी नॉन मेटालिक, ये रिएक्ट ही नहीं करता है. अगर मेटालिक कैरेक्टर इज डिक्रीजिंग ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा होगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज. नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, या हम उसे बोल सकते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर को इंक्रीजेस, या इसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, क्योंकि नॉन मेटल्स विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड गेट अ
negative charge on them. So electronegative character increases on moving in the period from left to right. Next is chemical reactivity. Chemical reactivity क्या होता है? देखो उसके पास 1 है, ये जल्दी से लूज करेगा. इसे 2 लूज करें थोड़ा देर लगेगी, इसे 3 लूज करें थोड़ा देर लगेगी, 4 में शेयर करने की टेंडेंसी है. सो केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस एंड उसके बाद इसे 5 है, गेन करने की टेंडेंसी है. 2 वाला और जल्दी गेन कर पाएगा, 7 वाला और जल्दी गेन कर पाएगा. तो केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस एंड उसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी विल इंक्रीज. और इसे एक तरह से और समझ सकते हैं, साइज बड़ा है तो लूज करना इजी है, इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया तो लूज करना और मुश्किल हो गया, इसका साइज और छोटा हो गया लूज करना और मुश्किल हो गया. ये नॉन मेटल है, जितना साइज छोटा होगा तो क्या होता है, अगर साइज छोटा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, और वो जल्दी से गेन कर लेगा. तो साइज छोटा होने से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है एंड साइज छोटा होने से जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस बहुत अच्छी तरह होल्ड करके रखता है. ठीक है, मुझे लगता है ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट. केमिकल रिएक्टिविटी मेटल्स में तो अगर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल होगा, सो मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा. लेकिन नॉन मेटल में जितना साइज छोटा है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है. तो एटॉमिक साइज से तुम केमिकल रिएक्टिविटी को याद रख सकते हो बच्चों. एक और आ रहा है नॉन, इनके ऑक्साइड्स की नेचर अब कैसी होती है. जो ऑक्साइड्स हैं दीज आर मेटल्स. मेटल के ऑक्साइड्स की हमने पढ़ा है नेचर एसिड एंड बेसिस चैप्टर में कि दे आर बेसिक इन नेचर, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर. तो हम बोल सकते हैं ये मेटल्स हैं, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, दीज आर नॉन मेटल, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड. तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड विल डिक्रीज and acidic nature of oxide will increase on moving left to right in a period of the periodic table. Next, I am starting with the groups. Groups में अब हम पढ़ रहे हैं friends of valencies. इसमें मैं 2 ग्रुप के एग्जाम्पल ले लेती हूँ. फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. एक ले लेते हैं चलो. नॉन मेटल के केस में ऑक्सीजन, सल्फर का. 1 atomic number is very important for the first 20 elements. 21, 281, 2881. So in a particular group, these are the members of group number 1. तो ग्रुप नंबर में सेम ग्रुप के अगर हम एलिमेंट्स वी आर कंसीडरिंग, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेम. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम सो वैलेंसी भी क्या होती है ग्रुप में, एक पर्टिकुलर ग्रुप में valency is same. Oxygen atomic number is 8, sulfur is 16, its atomic configuration is 26, 286. So valence electrons are 6 and इसका group number है 16. Valence electrons are 6, same valence electrons हैं and valency is also -2 because it has tendency to gain 2 electrons. Its valency is 1 because they have tendency to lose their 1 electrons. Next is atomic size. Atomic size देखो देखने से ही लग रहा है, as we go down from top to bottom in a periodic table, then number of shell will increase at each step. As number of shell is increasing, so atomic size will also increase. Atomic size will increase from top to bottom. इसमें बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, बट इसमें नंबर ऑफ शेल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एट ईच स्टेप, सो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, सो एटॉमिक साइज विल इंक्रीज. नेक्स्ट इज द मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, सो बाय कंसीडरिंग मेटेलिक कैरेक्टर वी आर नॉट कंसीडरिंग द हाइड्रोजन. जितना ज़्यादा साइज बड़ा होता है, मैंने भी बोला था, उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाने से डाउन द ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर या फिर इसे बोलते थे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज बड़ा हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना इजी हो गया है. साथ साथ केमिकल रिएक्टिविटी भी पढ़ लेते हैं. मेटेलिक मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना बहुत ईजी हो जाएगा
साइज बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, तो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। इन द केस ऑफ नॉन मेटल में मैंने अभी पीरियड्स के ट्रेंड्स में बताया था कि जितना ज्यादा साइज छोटा होता है उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है डाउन द ग्रुप, इट विल डिक्रीज, क्योंकि इसका साइज है ऑक्सीजन के लिए 2,6 और दिस इज फॉर ऑक्सीजन एंड सल्फर का मैं बनाऊंगी तो 2,6,8,6, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 and 6, साइज बड़ा हो गया तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस, और इसमें इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन would be more, क्योंकि न्यूक्लियस इज मोर क्लोजर टुवर्ड दिस इलेक्ट्रॉन। सो नॉन मेटेलिक करेक्टर साइज बढ़ने से डिक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर बोल सकते हैं या से बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। और साथ में केमिकल रिएक्टिविटी भी यही समझ लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन करना डिफिकल्ट होता जा रहा है जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है नॉन मेटल के केस में, तो केमिकल रिएक्टिविटी और नॉन मेटल विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ये मेन बच्चों ट्रेंड्स हो गए हैं तुम्हारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कोई एनोमली नहीं है, सारी एनोमली सब रिमूव हो गई थी पीरियोडिक टेबल बनाने से। केमिस्ट्री इजी एंड सिस्टमेटिक हो गई है, ये इसके एडवांटेजेस हैं, ये सब तुमको लर्न करने हैं। बच्चों मुझे लगता है तुम लोग को ये चैप्टर काफी अच्छा कुछ रिवाइज हो गया होगा और तुम्हें अच्छी से और समझ आया होगा, ठीक है। और इसे अपने नोट्स में से एनसीईआरटी के थ्रू एक बार पढ़ें, एनसीईआरटी को फॉलो करें, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ऑल द बेस्ट बच्चों, एंड बाय, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो बच्चों, बाय।